मार्केट गिरने वाला है, यूएस रिसेशन आ रहा है, इंडिया बर्बाद हो जाएगा और अमेरिका ने 500% टैरिफ लगा दिए। यही सुन रहे हो ना पिछले कुछ हफ्तों से। News channel want you to panic. Retail investors are selling their portfolios because they think 500% US tariffs means the end of the Indian economy. But let me tell you something with 100% certainty. Stop acting like a victim. So, while you are scared, the smart money, the operators, the big institutions are buying. वो खरीद रहे हैं. They know something that you don't know. They know that this is 5%, 500% number isn't a death sentence. It is a trigger for the biggest wealth transfer of our generation. हाय, मेरा नाम है योगेश। आज मैं कोई टिप्स देने नहीं आया हूँ। टुडे आई एम गोइंग टू डिकोड द ग्लोबल डेटा दैट वॉल स्ट्रीट ट्राइज टू हाइड. We are going to connect the dots between US tariffs, copper, and AI boom to show you exactly where to put your money in India right now. अब सबसे पहले let's address the elephant in the room. US is threatening 500% tariffs on countries breaking away from dollar. अब लोग सोच रहे हैं ओ नो इंडिया एक्सपोर्टर्स तो मर ही जाएंगे. गलत. लुक एट द यूएस डेटा. अमेरिका इज अ कंजम्पशन इकोनॉमी. वहां सामान बनाते तो नहीं है, वहां सामान खरीदा जाता है. इवन द शर्ट ऑन देयर बैक एंड द फोन इन देयर पॉकेट, वो सब सब कुछ इम्पोर्टेड है. If they put 500% tax on India, China, and Russia, guess who suffers the most? It's the American citizen. Their inflation will hit 20 to 30%. उनकी दवाई मेडिसिन के प्राइसेस 10 गुना हो जाएंगे because India supplies 40% of their generic medicines. So समझो इस बात को कि this is a geopolitical negotiation, not a suicide mission. But even if things get tough, India is in a sweet spot. Why? Because the world is dividing into two blocks and India is the only factory left that the West can trust. जब चाइना से सप्लाई चेन टूटेगी तो पैसा वियतनाम या मेक्सिको नहीं, पैसा इंडिया ही आएगा. एंड द डेटा इज ऑलरेडी शोइंग दिस. नाउ लेट्स लुक एट द डॉक्टर. फाइनेंशियल वर्ल्ड में कॉपर को डॉक्टर कॉपर बोला जाता है बिकॉज इट डायग्नोसिस द हेल्थ ऑफ इकोनॉमी. हिस्टोरिकली जब इकोनॉमी बढ़ती है तो कॉपर ऊपर जाता है एंड जब रिसेशन आता है तो कॉपर नीचे जाता है. सिंपल. लेकिन अभी क्या हो रहा है? इंटरेस्ट रेट्स हाई हैं, यूएस इकोनॉमी ठीक नहीं है, चाइना का रियल एस्टेट मार्केट क्रैश हो चुका है, बट कॉपर प्राइसेस ऊपर ही उठे जा रहे हैं. वाई? अगर रिसेशन आ रहा है तो मेटल प्राइसेस क्रैश क्यों नहीं कर रहे हैं? ध्यान से सुनिए. लिसन वेरी वेरी केयरफुली. दिस इज द डाइवर्जेंस. कॉपर ऊपर जा रहा है ड्यू टू स्ट्रेटेजिक स्कैरसिटी. वॉल स्ट्रीट इंस्टीट्यूशंस लाइक BlackRock हो गया, Goldman Sachs know that future is not buying clothes. The future is infrastructure and AI. You cannot build an AI data center without tons of copper. You cannot build electric vehicles, EVs, without copper. You cannot modernize India's power grid without aluminum and copper. So while the general economy might look slow, the strategic economy is on fire. For Indian investors, this means one thing: commodity super cycle. Look at the companies like Hindalco, Vedanta, Tata Steel. The demand for metals is not going away because AI needs power and power needs metal. So let's go one step more deeper. Everybody is talking about investing in AI stocks. सबको Nvidia खरीदना है. But that trade is very very crowded. वहाँ पैसे ऑलरेडी जिसको बनाने थे वो बन चुके हैं. एंड स्मार्ट इन्वेस्टर्स पिक एंड शॉवल स्ट्रेटेजी का यूज करते हैं. आप इस तरीके से सोचिए, लाइक एआई क्या खाता है? हवा नहीं खाता. एआई खाता है इलेक्ट्रिसिटी. A ChatGPT search uses 10x more electricity than a Google search. Where will this power come from? यूएस में डेटा सेंटर्स बन रहे हैं, इंडिया में अदानी और टाटा मैसिव डेटा सेंटर्स प्लान ऑलरेडी कर चुके हैं. यूएस टैरिफ्स won't stop इंडिया फ्रॉम डिजिटाइजिंग. इनफैक्ट इंडिया का डेटा कंजम्पशन वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट है. This creates massive opportunity in the Indian power sector. We are facing a power deficit. सरकार को और बिजली चाहिए. Look at power financiers like REC, PFC, and power producers like Tata Power, NTPC, Adani Power. जब तक AI बूम चलेगा, पावर सेक्टर में पैसा बनेगा. ये ट्रेंड नहीं है, ये एक नेसेसिटी है.
तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, चाइना। चाइना की इकोनॉमी स्लो हो रही है, बट चाइना कॉपर और कमोडिटीज होल्ड कर रहा है। व्हाई? बिकॉज दे आर बेटिंग एवरीथिंग ऑन ग्रीन एनर्जी डोमिनेंस। बट हियर इज द कैच फॉर इंडिया, द यूएस हैज इफेक्टिवली ब्लॉक्ड चाइना विद टैरिफ्स, चाहे 500% हो या 100%। चाइनीज गुड्स आर टॉक्सिक फॉर वेस्ट नाउ। This is the Make in India movement specifically for manufacturing and defense. Defense is the new oil. Look at the geopolitical tension. हर कंट्री को अपनी सिक्योरिटी बढ़ानी है. Indian defense companies like HAL, Bell, Mazagon Dock, their order books are full for next 5 to 10 years. Tariffs supply chains को disrupt करेंगे, yes, but that disruption forces manufacturing to shift to India from China. We are seeing a massive PLI schemes, buying dips in electronic manufacturing, stocks like Dixon हो गया या फिर Kines Tech हो गया, is a no-brainer for next 5 years. तो समरी क्या है? पहली बात तो डरो मत, आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है. If America imposes 500% tariffs, the dollar weakens in the long term and hard assets go up. So here is your three-step action plan. I'm sorry. Number 1, don't hold excess cash. महंगाई आने वाली है, inflation is coming globally, and जो cash है, cash is a trash. Number 2, allocation shift. Move money into real assets, जैसे कि metals हो गया, copper and silver are the safer bets than pure tech stocks right now. एनर्जी में इन्वेस्ट, दूसरा एनर्जी में इन्वेस्ट कीजिए, पावर जनरेशन एंड रिन्यूएबल एनर्जी के स्टॉक्स इन इंडिया को, उसको खरीदिए. थर्ड, इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करिए, जैसे कि रोड्स हो गया, डिफेंस एंड रेलवेज. और हेडलाइंस जो भी न्यूज में आ रहा है, आप उसको अभी के लिए इग्नोर कीजिए, क्योंकि न्यूज चैनल सेल एड्स बाय स्केरिंग यू. आई एम टेलिंग यू टू लुक एट द ऑर्डर बुक्स ऑफ दीज कंपनीज. द डिमांड इज रियली रियल. Look, 2026 is going to be very volatile. ऊपर नीचे होगा, but volatility is the price you pay for wealth. अगर आप डर के मारे मार्केट से निकल गए, तो 2 साल बाद आप रिग्रेट करोगे जब सेंसेक्स 1 लाख क्रॉस करेगा और कमोडिटीज 2 times हो जाएंगी. America has its own problems, so let them print money, let them fight trade wars. India is building. Stick to the story of growth. मैं ऐसे ही डीप डाइव एनालिसिस और डेटा बैट स्ट्रेटजीज लाता रहूंगा. मैं हवाबाजी में बिल्कुल बिलीव नहीं करता. आई बिलीव इन नंबर्स. अगर आपको अपने पोर्टफोलियो को प्रोटेक्ट करना है और अपने वेल्थ क्रिएट करनी है, तो अभी के अभी सब्सक्राइब का बटन दबाओ, हिट द बेल आइकन एंड कमेंट बिलो आई एम बाइंग इफ यू आर बुलिश ऑन इंडिया और आई एम सेलिंग इफ यू आर स्कैर्ड. लेट्स सी व्हाट द सेंटिमेंट इज. कीप लर्निंग, कीप इन्वेस्टिंग. जय हिंद.